Good morning, children. Today we will learn about the anomalous behavior of oxygen. You have seen that the first element of the P block in any group shows certain properties that are different from other members of the group. This behavior of the first member of the group is called as anomalous behavior or abnormal behavior. And the reason for abnormal behavior is smaller size, high electronegativity, non-availability of d orbitals. Now we will see in what properties oxygen is different from rest of the members. So first is oxygen is gas while all other members are solid. So you have seen this is due to p pi multiple bonding in oxygen and weak van der Waals force of attraction between oxygen molecules. Oxygen is diatomic, others are octatomic. Again it is due to p pi multiple bonding. The octet of oxygen is completed in diatomic form. But in all other cases, since they cannot make p pi multiple bond, so they complete their octet by making 2 sigma bond with 2 other sulfur atoms and thus acquired a puckered ring form octatomic molecule. Oxygen exhibits oxidation state of -2 in its compound and -1 in peroxides, but it does not form stable component positive oxidation states. Some unstable compound of oxygen with chlorine, they are in positive oxidation state, but these compounds are unstable. Other members exhibit oxidation state of +2, +4 and +6, and this is due to availability of d orbitals in their valence shell. Oxygen forms ionic bond and it also forms covalent compound, but other members form covalent compounds only. It exhibits p pi multiple bond due to smaller size, but others can form p d multiple bond, which is unstable. The boiling point of water is higher than H2S. Again, this is due to intermolecular hydrogen bonding in water molecule. Water is liquid, H2S is gas. Again, this is due to the reason that there is intermolecular hydrogen bonding and its boiling point is above room temperature. Water is neutral, other compounds are weak, dibasic acid. Oxygen is paramagnetic, but other members are diamagnetic. So all these are the properties in which oxygen is different from rest of the members. Now children, we will take dioxygen, how it is prepared and its properties. So first about preparations. Dioxygen can be prepared by thermal decomposition of oxygen rich compound like potassium chlorate on heating to 673 to 873 Kelvin temperature gives potassium chloride and oxygen. Similarly, potassium permanganate on thermal decomposition gives potassium magnate, manganese dioxide and oxygen. लैब में ऑक्सीजन बनाने के लिए फर्स्ट रिएक्शन यूज करते हैं पोटेशियम क्लोरेट का, बट इन लैब द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड is used. Here manganese dioxide is used as catalyst. Potassium chlorate and manganese dioxide is taken in the ratio 4:1 and then it is heated up to 420 Kelvin temperature. Then we get dioxygen. Thermal decomposition of oxides of less reactive metal can also be used to produce dioxygen, like mercury oxide and silver oxide on heating gives mercury and silver along with oxygen. On large scale manufacturing, dioxygen is obtained from air. तो एयर को पहले लिक्विफाई कर लेते हैं एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन. देन dioxygen is obtained at 90 Kelvin temperature, and dioxygen can also be prepared by electrolysis of water
as we have seen in electrochemistry, that electrolysis of water gives oxygen at anode. So these are the methods for the preparation and manufacturing of dioxygen. Now we will see the properties. First, about physical properties. So dioxygen is colorless, odorless and tasteless gas. It is very slightly soluble in water. Its solubility is, if you see, तो ये केवल 30.8 ml per liter है at 298 Kelvin temperature, but this much oxygen is sufficient to sustain the aquatic life of organisms. Oxygen exists in the form of three isotopes: oxygen 16, 17 and 18. Oxygen is paramagnetic in nature. अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखें तो डायऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है. Chemical properties. Bond dissociation energy of oxygen is very high, 493.4 किलोजूल पर मोल. यही कारण है कि ऑक्सीजन अपने आप जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, कुछ रिएक्टिव मेटल को छोड़ के. जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीजन की, इनको इनिशिएशन चाहिए हीट से, और एक बार जब इनिशिएट करते हैं तो इसकी जो रिएक्शंस हैं वो सब मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के समय जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसको नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है. इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस. इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Dioxygen is a powerful oxidizing agent, hence oxidize metals, non-metals and some compounds. First we will see reaction with metal. It forms metal oxides. Like with sodium, it forms sodium oxide. With magnesium, heating is required, gives magnesium oxide. Similarly with aluminium, aluminium oxide, like that. These oxides are ionic and basic in nature. Now, if you see the reaction with non-metals, then it reacts with hydrogen to form water at very high temperature, 1073 Kelvin. With dinitrogen, it forms nitric oxide at 3300 Kelvin temperature. With sulfur, it forms sulfur dioxide. These oxides are covalent and they are either acidic or neutral, like water and NO, they are neutral compounds. Reaction with compound, these are very important reactions, children. All these are very important. First, oxidation of sulfur dioxide. It gives sulfur trioxide in presence of vanadium pentoxide catalyst. और ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन का की स्टेप है कंटैक्ट प्रोसेस से. सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड at 1100 Kelvin temperature in presence of platinum as a catalyst. This reaction is the main reaction for nitric acid production. HCl on oxidation in presence of CuCl2 as catalyst. This is Deacon's process for chlorine preparation. So all these are very important. Zinc oxide on combustion gives zinc oxide and sulfur dioxide. Now uses. Dioxygen is used in oxyhydrogen and oxyacetylene torches for welding, artificial respiration, as a rocket fuel. It is used in metallurgy, and dioxygen is used in the manufacture of large number of compounds. Now we will take the next compound, that is ozone. Actually, ozone is present in stratosphere at about 20 kilometers from the earth, where it is formed by the action of ultraviolet radiation on dioxygen. अगर आप देखें तो 10 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर तक ओजोन पाई जाती हैं. एट 20 किलोमीटर, अबाउट 20 किलोमीटर ओजोन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन के अल्ट्रावायलेट रेस के इंटरेक्शन से ओजोन बनता है. ये प्रोसेस रिवर्सिबल है. ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 220 से 290 nm होती है, एंड देन इट प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. दैट इज यूवी रेडिएशन को नीचे आने से बचाता है. ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड, और इसके डिप्लीट करने के लिए
जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कुछ रेडिकल्स हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द क्लोरीन एंड फ्लोरीन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, जहाँ पर जो CF2Cl2 है, जिसको फ्रीऑन 1,2 बोला जाता है. 1 जो फ्रीऑन के बाद नंबर लिखा रहता है बच्चों, उसमें जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो कार्बन और दूसरा नंबर फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है. तो इफ़ यू सी, जो फ्रीऑन्स होते हैं ये बहुत ही स्टेबल अनरिएक्टिव गैस होते हैं. ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट चूँकि यूज होते हैं. तो व्हेन दे कम इनटू द एटमॉस्फेयर तो धीरे 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 ये ऊपर उठ के स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं. तो वहाँ पर जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंटरेक्ट होते हैं तो क्लोरीन रेडिकल बना देते हैं. बच्चों ये क्लोरीन रेडिकल हार्मफुल है ओजोन के लिए, क्योंकि ये क्लोरीन रेडिकल फिर ओजोन से रिएक्शन करके क्लोरीन ऑक्साइड और डाइऑक्सीजन बना देता है. फिर क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल फिर ओजोन से रिएक्ट करके क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन. तो ये जो चेन रिएक्शन है ये लगातार चलती रहती है और जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में कम हो जाएगा और ओजोन लेयर वो थिनिंग होने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो जिससे हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पर आने लगती हैं, जिसके वजह से कैंसर और प्लांट में भी बहुत सारे डिजीजेस होती हैं. प्रिपरेशन ऑफ ओजोन. ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन. साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो ओजोन जो होगा वो डिकम्पोज होगा, फिर ऑक्सीजन बनाने लगेगा. एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन इंस्ट्रूमेंट कॉल ओजोनाइजर. ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. जब ये प्रोसेस होता है तो फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइजर से हमें केवल 10% ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलता है. बच्चों इसके बाद अगर हमें और कॉन्सेंट्रेटेड ओजोन चाहिए, क्योंकि ओजोन जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उतना ही अनस्टेबल होता है, तो फर्स्ट ओजोनाइजर से जो हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिलता है उसको सेकंड ओजोनाइजर से भेजते हैं, तो ये 40 से 50% प्योर हो जाता है. फिर उसको थर्ड से भेजते हैं. तो इस तरह से हम बैटरी ऑफ ओजोनाइजर का यूज करते हैं. मतलब पहले का ओजोनाइजर की ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस तरह से ओजोन कंसंट्रेट होती चली जाती है. नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर, तो जो ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पर इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक मल्टीपल बॉन्ड है और एक डेटिव बॉन्ड है, एक लोन पेयर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में. ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री ना होके 117 डिग्री का होता है. और चूंकि ये रेजोनेंस शो करता है तो किसी में भी कंप्लीट डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं होता है, बट इन बिटवीन करेक्टर रहता है और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 120 पिकोमीटर की होती है. इफ यू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन, तो ओजोन एक पेल ब्लू गैस है हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, और अगर इसका कंसंट्रेशन 100 ppm से ऊपर चला जाता है देन इट बिकम्स हार्मफुल, जिससे नॉजिया, स्नीजिंग और ये सब होने लगता है, हेडेक. ओजोन इज डायमैग्नेटिक, जबकि आपने पढ़ा था ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस. इट्स डिकम्पोजिशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज वेरी इजी बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. और अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो इसके लिए एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए 3 मोल गैस के हैं और यहाँ पर 2 मोल गैस का है. तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा जी भी नेगेटिव. तो सारे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ओजोन के डिकम्पोजिशन को फेवर करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ओजोन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ओजोन वेरी इजिली डिकम्पोज होता है बच्चों, एंड इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन देता है. और ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर जो दूसरा सब्सटेंस है उनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है. नाउ इफ यू सी सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन रोल, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है. ओजोन गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन
और ये नेसेंट ऑक्सीजन पीबीएस को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है। लेड सल्फाइड ब्लैक होता है, लेकिन ये लेड सल्फेट में कन्वर्ट होने के बाद वाइट हो जाता है। बच्चों लेड पेंटिंग्स आप लोग देखे होंगे, जहाँ सल्फाइड का पोल्यूशन होता है वहाँ पर लेड पेंटिंग जो कि सिल्वर की तरह एकदम वाइट दिखती हैं, तो पोल्यूशन के कारण वो ब्लैकिश पड़ जाती हैं। तो अगर ओजोन एक रुई में लगा के उस पर आप केवल लगा दीजिए तो धीरे धीरे जैसे वो सूखेगा वो वाइट हो जाएगा। इट ऑक्सीडाइजेस मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। ये रिएक्शन है 2Ki प्लस H2O प्लस ओजोन गिव्स 2KOH प्लस O2 प्लस I2। यहाँ पर जो आयोडीन लिबरेट हो रहा है, दिस आयोडीन liberated iodine can be used to estimate the quantity of ozone present in ozonized oxygen। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये रिएक्शन प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी और पोटेशियम आयोडाइड रहेगा KOH की प्रेजेंस में, एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट अंडर द बफर कंडीशन, जहाँ पर बोरेट बफर यूज होगा एट pH 9.2 मेंटेन रहेगा। तो जो प्रोडक्ट है बच्चों उसमें आयोडीन होता है, फिर इसको हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। तो इस टाइट्रेशन से हमें पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन में आयोडीन कितना है। अब आप देखिए, अगर रिएक्शन देख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि अगर 1 मोल आयोडीन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑक्सीजन में जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं वहाँ पर 1 मोल ओजोन रहा होगा, बिकॉज देयर इज रेशियो ऑफ 1:1। तो इस तरह से हम ओजोन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ द ओजोन इज एस्टिमेटेड। सो दिस इज डन बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड moist condition with ozone, and the product which contain iodine is titrated against sodium thiosulfate solution. So by using the titration equation हम N1B1 इक्वल टू N2B2 या M1B1 अपान N1 इक्वल टू M2B2 बाई N2 यूज करते हैं, जो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है। M1B1 अपान N1 ये रिड्यूसिंग एजेंट के लिए है, इक्वल टू M2B2 अपान N2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। ये दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। ये आपका टाइट्रेशन का फार्मूला है, M1B1 अपान N1 दिस शुड बी इक्वल टू M2B2 अपान N2। तो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं कि कितना आयोडीन बना होगा, फिर उससे कितना ओजोन रहा होगा। ब्लीचिंग एक्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन, ओजोन इज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट एंड इट्स जो इसका ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रूल है। तो ये वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर जो कलर्ड हैं, डेलिकेट आर्टिकल्स हैं, सिल्क, वूल और आइवरी, इनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है कलरलेस प्रोडक्ट में। सो this is the bleaching action, this is due to its oxidation rule. Now the uses of ozone, it is used as disinfectant and germicides, bleaching agent for delicate fabrics, oil and starch etc. It is used for purifying air in railway tunnels, crowded areas, cinema halls, preparation of organic compounds like aldehyde and ketone। आपने ये रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा था कि व्हेन एनी एल्कीन इज ट्रीटेड विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, तो एक्चुअली पहले ओजोनाइड बनता, फिर वो डिकम्पोज होता है, तो हमें एक कार्बोनिल कंपाउंड 2 मिल जाते हैं, जो दोनों कीटोन हो सकते हैं या दोनों एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर एल्कीन के। करते क्या है, सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जो मल्टीपल बॉन्ड है इसको बीच से ओपन करेंगे, तो इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, और दोनों कार्बन को, जो कार्बन अलग हो रहे हैं डबल बॉन्ड से, उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, बस यही करना है। जैसे यहाँ से तोड़ दिया तो C डबल बॉन्ड बन गया, ये C डबल बॉन्ड बन गया, इस C डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, इस C डबल बॉन्ड से O जोड़ दिया, एक कीटोन एक एल्डिहाइड या दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन बन सकता है। ये उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों इस तरह से ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।